सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं अपने बारे में थोड़ा सा। माय नेम इज तारिक महमूद. आई हैव बीन working in renowned software companies from past 22 years, and thank you very much for giving me a chance and opportunity to present something with you, share my views on a very common topic which is now becoming a buzzword in these days. We will make the mode of this presentation in English and Urdu as well. Okay. So I definitely expect that there is different level of audience. There are number of people who are in their startup career, and then there are mid-level people, and there are people who are on the senior stages. So I am trying to present something which is equally acceptable as well as convincing for all level of audience or participants. Again, as I have repeated, it is a very common topic. I guess everyone has heard the name very much recently. There are some myths and some realities in this emotional intelligence thing, and we'll see these in detail, that what commonly saying or things are about this emotional intelligence, and what is this in the real life or reality. The most important thing is the realization of the message or realization of the presentation, that why we are here. Again, it's a learning teaser. It doesn't cover all the aspects in detail, and every great finish was once a simple beginning. So we are starting now. Okay. So the session objectives we have covered are before you. These are our objectives, today's objective as well. What is, first we will define what is emotional intelligence, then its components, competencies that underpin EI, what is the differentiation between IQ and EQ, and most importantly today's focus is EI with respect to the workplace, with respect to our professional environment. Then there are causes, and then there are effects. So how can we raise our emotional intelligence, and what are the benefits of higher emotional intelligence, or how one can be a very emotionally or stable, he called an emotionally stable person. So as it is a common phenomena that we, the human beings, we are all with the emotion. We are all observing emotion in our daily life. Some of the emotional which are truly, we'll see in later slides, these are universal emotion like happiness, sadness, anger, fear, surprise, and contempt, and many other emotions you can find everywhere. So we are made up of emotions, and these emotions affect our daily life. If we are coming to the office and we are in good mood, definitely our productivity, our performance will be higher. And if we are not in a good mood, then this will affect our personal life as well as professional life. And factor which affects our emotion, they are decision making, relationship, stress management, and grabbing the opportunities. And we will see these in detail as well, because if we are in a very bad mood, and if we are and being in that bad mood, we are taking any decision, it is these are very much chances that we can probably go into the wrong decision making due to our mood swing. And definitely it is the case in the relationship, whether the relationships are in the office environment or in our personal life, we can go astray with our mood swings. Stress management is also a topic which also affect emotions. And there are everyday example that opportunities are everywhere. These opportunities can be a learning opportunity, the promotional opportunity, or any other opportunity. So if we are having stable emotions, we can grab those opportunities positively. Starting with emotional intelligence again, till 70s, there were commonly the main thing which is affecting lives of the people are IQ. IQ is intelligence quotient. Mainly जो लोग कहा करते हैं कि किसी भी शख्स की जहानत को, किसी शख्स की ब्रिलियंस को मेजर करने का जो पैमाना है वो है IQ. किसी शख्स की IQ अगर एवरेज है, अबव एवरेज है, एक्सीलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, तो हमने मैथमेटिकल एक नंबर्स जो है वो असाइन किए हुए थे.
and that can be achieved through certain puzzles, certain gamification or certain type of written test. और उससे हम ये करते थे. लेकिन with the passage of time, when we see के there are organization, there are people who are intelligent at some place, लेकिन उनका डाउनग्रेड हो रहा है बावजूद तमाम एक्सीलेंट या स्मार्ट पीपल होने के, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही. तो उस वक्त जो थ्योरिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज आल्सो वर्किंग अदर देन दिस. देन दे कम टू नो दैट देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड EQ और इमोशनल क्वोशंट. देन दे get into this, that if any person is having a grip or control on their emotions, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी है उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं. और उन्हीं इमोशंस को अगर वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं तो वही इमोशंस उनको डिरेल कर देते हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ वन सेल्फ टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस. ये है इमोशनल इंटेलिजेंस. आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कि कितने आप अवेयर हैं अपने इमोशन से मुतालिक, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसको मैनेज करते हुए आप दो और फैक्टर्स हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं. तो लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एक्चुअली दिस इमोशनल इंटेलिजेंस जो इसका ज्यादा जो यूं कह लें कि फेमस हुआ है, डैनियल गोलमैन है, एक साइंटिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उस किताब का नाम भी इमोशनल इंटेलिजेंस है, और वो जो है 1995 या 96 में आई. और उसी बुक के बाद इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बर्पा हो गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को यूं कह लें कि इस पर रिसर्च की कि इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ कर रही हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउनफॉल में जा रही हैं. तो ही हैज डिफाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, कि सबसे पहले तो किसी भी एक इंडिविजुअल को अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे क्या इमोशन है, मैं किन चीज़ों से ट्रिगर हो जाता हूँ. ठीक है, उसको इमोशनली अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. उसके बाद फिर उसको मैनेज करना आना चाहिए. फिर उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसकी उसको अवेयरनेस होनी चाहिए. और उसके बाद उसको चाहिए कि वो उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरह से इंस्पायर कर सकता है. अच्छा, ये जो लीडरशिप की आजकल जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ है कि आपने लोगों से काम किस तरह से लेना है, उनकी जो है अवेयरनेस को समझते हुए. इसी को मैंने ज़्यादा डिटेल में बना दिया है कि द टाइटल या हेडिंग इज हु आई एम एंड व्हाट आई मस्ट डू. तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं. उसमें सबसे पहले तो पर्सनल जो कॉम्पिटेंस है उसको देखें. आप ये देखें कि अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं तो हम ये कहते हैं कि प्लीज लिस्ट सम ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड सम ऑफ योर वीकनेसेस. तो अब उसमें ज्यादातर लोग जो है, ये अगेन मिथ है कि लोग कहते हैं कि जो बुक्स में है या किसी से पूछ लेते हैं हम क्या लिखें और वो जाके लिख आते हैं, तो दैट कुड नॉट बी ए गुड, जैसे कहना चाहिए कि रीजन कि आप जो है इस चीज को लेके चलेंगे. आपको अपनी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है खुद शनासी. अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ या शाई हूँ. ठीक है कि नहीं, क्या मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, क्या मैं किसी भी सिचुएशन में थोड़ी देर से के लिए जो है वो थोड़ी देर जाने के बाद बोर हो जाता हूँ, क्या मैं ज़्यादातर सैड रहता हूँ. तो फर्स्ट स्टेज है सेल्फ अवेयरनेस, एंड देन उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि उसकी जो है मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने. ठीक है, ये जब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको हैंडल किस तरह करना है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाता है सोशल अवेयरनेस. तो आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस फैमिली में, जिस कंपनी में है, उसके मुतालिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ पे किस किस्म का कल्चर है और एनवायरनमेंट है. ठीक है, तो उस हिसाब से आप उस रूम के, उस सिचुएशन के मूड को पिक करते हैं. और जो लास्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, कि कैसे आपने इसको हैंडल करना है, इस तमाम माहौल को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने आप को पॉजिटिव किस तरह से रहना है और इन्फ्लुएंस किस तरह से करना है. Then guys, there are 2 things. One is called motivation and one is called inspiration. Motivation ये है कि फर्ज करें कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या जैसे मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, तो एक चीज ये है कि आप वक्ती तौर पे मोटिवेट हो जाएंगे, और एक ये है कि मेरा जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, मेरा पर्सोना है, वो इस किस्म का है कि वो इंस्पायर कर देता है. तो वो जो है, वो जो चीज है वो भी बहुत ज्यादा प्ले करती है इमोशनल इंटेलिजेंस.
अब इसकी जो कॉम्पिटेंसी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, आप ये देखें कि आमतौर पे जो अप्रेजल्स होती हैं, एनुअल अप्रेजल्स, उसमें जो सुपरवाइजर हैं वो ज्यादातर रेट करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स किसी भी रिसोर्स की कम है या ज्यादा है, फ्लेक्सिबल या अडॉप्टेबल है कि नहीं, स्ट्रेस मैनेज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह इंटरपर्सनल उसकी स्किल्स हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर हैविंग अ कंट्रोल ऑन दीज कॉम्पिटेंसीज तो यू कैन बी कॉल्ड अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है और एम्पैथी है और ये तमाम चीजें हैं, दीज आर मेन कॉम्पिटेंसीज जिनके ऊपर आप लोग ग्रिप हासिल करेंगे तो यू आर वेरी, जैसे कहना चाहिए कि टाइटल्ड एज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। सो यू सी अराउंड यू देयर आर many type of people, कुछ मैंने ये स्लाइड में दिए हैं कि when we are working in team environment definitely this is the new norm कि आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फैमिली है, आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लोगों के साथ डिलीवर करना है। तो उसमें आप देखें तो एवरी पर्सन हैज देयर ओन मूड, एवरी पर्सन हैज देयर ओन ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक। तो देयर आर पीपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे आपकी टीम में लोग होंगे, आपकी कंपनी में लोग होंगे जिनको लोग कहते हैं ये गूगल है, द नो इट ऑल, ठीक है जी। कुछ हैं जो पैसिव हैं, कुछ डिक्टेटर हैं, कुछ यस पीपल हैं, कुछ नो पीपल हैं। तो इनके डिटेल आप स्लाइड में बाद में पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कह लें कि फ्लेवर है, एक ब्यूटी है कि हर बंदे का अपना एक यूं कह लें कि मूड ऑफ माइंड है, एक फ्लेवर है उसकी पर्सनैलिटी का जिसको वो कैरी कर रहा होता है। अब उन तमाम फ्लेवर्स के साथ किस तरह से हमने काम करवाना है या किस तरह से एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, दिस इज योर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तमाम लोग एक ही तरह के सेट पैटर्न पे हो जाए, वो तो फिर रोबोटिक मूवमेंट हो जाएगी। तो व्हेन यू सी दैट देयर आर पीपल विद इमोशंस, विद फीलिंग्स, तो फिर वो जो है किसी किस्म की भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि कुछ भी वो आपको रिएक्ट कर सकते हैं। तो सो यू नीड टू गेट लॉन्ग with these type of people and other type of people. जैसे कि हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस की, जहां पे एक इमोशनली इंटेलिजेंस वर्क प्लेस होगी या एक जो वर्क प्लेस है जहां पर एक काम एंड कूल माहौल होगा, वहां पे आप देखेंगे पीपल लिसन टू ईच अदर इन मीटिंग्स। और जहां पर इस किस्म का एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पर आप नेगेटिविटी है, वहां पे आप देखेंगे लोग कट कर रहे होते हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे होते, ठीक है। और पहली चीज में लेते हैं, जो पहला इंस्टांस मैंने कहा कि जिन जगहों पे पीस है, कॉमनेस है, प्रोग्रेस है, जहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल है, वहां पे आपने देखा होगा दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सेल्व्स ओपनली। वो इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट इन वेरी गुड मैनर। वो बताते हैं कि आज फर्ज करें कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग फ्रॉम होम पे हम सब लोग, तो अगर कोई किसी टीम के अंदर आ नहीं रहा तो वो ओपनली बताएगा कि जी आज मैं बीमार हूँ, या आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और आई एम वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस एनवायरनमेंट। तो वो अपना एक्सप्रेस करेगा तमाम चीज को। इसके बाद आप देखें कि आप अगर नेगेटिविटी है तो मोस्ट एम्प्लॉइज जो है दे हैव ऑलवेज बैड मूड, आर्गूमेंट करेंगे और उनके बैड डेज होंगे हर वक्त, ठीक है। जो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, देन यू सी देयर आर इनिशिएटिव्स ऑल देयर, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, वो क्रिएटिव होंगे। और ऐसे भी एनवायरनमेंट मैंने देखे हैं, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखी है व्हेन देयर आर पीपल जो कि वर्क टाइम के अलावा भी, वर्क प्लेस के अलावा भी एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिविटी होती है। तो इफ यू आर पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव एनर्जी ही इमिट करेंगे और उसी से आप देखें कि आपका पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंस के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें पहला स्टेप है दैट इज परसीविंग इमोशंस। सबसे पहले तो आपको परसीव करना है। अब एक इडियोमैटिक होता है कि लोग अक्सर कहते होते हैं कि आई स्मेल आउट माई बॉस, यानी मैंने अपने बॉस को महसूस कर लिया कि जैसे ही बॉस एंटर हुआ है मुझे पता चल गया है कि आज क्या वो गुस्से में है, खुश है, सरप्राइज है, या वो फियरफुल है, क्या चीज है। तो चाहे वो ऑफिस एनवायरनमेंट है और चाहे वो घर का एनवायरनमेंट है, या इसी तरह बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो कहते हैं कि जी पेरेंट्स में फादर हैं या मदर हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है तो वो उसके मूड के हिसाब से पूरे घर का मूड सेट हो जाता है। तो आपने इमोशनली इंटेलिजेंट ये होना है कि आपने बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन जो है, फेशियल एक्सप्रेशंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, ये नॉन वर्बल साइन है, ठीक है।
उसके बाद आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उस चीज को आपने इस चीज को समझना है कि ये जो यूनिवर्सल इमोशंस है ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है। एंगर भी है, फियर भी है, डिस्गस्ट भी है, हैप्पीनेस भी है। तो ऐसा ना हो कि किसी के एक जुमले के साथ आपका पूरा जो है फुल डे जो है वो रियून हो जाए। क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर किसी ने आकर सिर्फ ये कह दिया कि ये तुम हो ही निकम्मे, तुम काम नहीं कर सकते, तो आप जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है वो उसको जो है वो मैनेज करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। वो कहेगा कि मुझे सुपरवाइजर ने ये बात कही है, क्या पता आज उसका बैड डे था, ये किस वजह से है, उसको वो सोचेगा बजाय उसको एकदम रिएक्ट करने के। तो ये जो है, इसको आपने जो है सेकंड स्टेज आ जाती है कि पहले आपने उसका परसीव किया इमोशन, उसके बाद उसको समझा कि इमोशन इसका मौजूद है। अच्छा, अब कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि लोग ये कहते हैं कि जूं जूं आप बड़े होते जाते हैं आप जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाते हैं, जो टीन एज में या यंगस्टर्स हैं वो गुस्से के तेज होते हैं। जबकि रिसर्च ये नहीं कहती। रिसर्च ये कहती है कि जितने आप यंगस्टर हैं आप अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जूं जूं पुख्ता उम्र के होते जाते हैं आपके इमोशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमने इस तरह के भी लोगों को इमोशंस को उनको देखा है कि दे आर प्रोफेशनली वेरी गुड, दे आर प्रोफेशनली ऑन देयर ग्रेट स्टेजेस, लाइक वो सर्जन्स हैं, वो फौज में जर्नल्स हैं और बाकी तमाम हैं, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं होते। वो जब when they are dealing or when they are interacting with the people they will out of control। तो ये मिथ्स बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने इस चीज को लेकर चलना है। उसके बाद जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया कि वर्ड्स आर एवरीथिंग एंड वर्ड्स आर नथिंग। तो आपने बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड्स की जो सिलेक्शन है ये आपके हाथ में, कि आपने किसी के साथ किस तरह से बात करनी है। देयर आर पीपल who are on a supervisory role and when they are in leadership role, वो किसी को सिर्फ एक कह दें गुड लक और ऑल द बेस्ट फॉर दिस योर न्यू वेंचर, आप ये देखें कि दूसरा जो बंदा है वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बिहेव करने शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक फर्स्ट स्टेप है कि वर्ड्स को आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद लिसनिंग इज द की। अब लिसनिंग में एक तो कम्युनिकेशन है, जैसे आप मुझे लिसन कर रहे हैं, मैं एक साइड से बात कर रहा हूँ, लेकिन इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे भी हैं कि नहीं। और नंबर टू ये है कि आप ये सोचें कि क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, कि जब कोई बात कर रहा है अगर वो दुख भरी बात कर रहा है, खौफ की एनवायरनमेंट में बात कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या चीज है। तो पुट योर फुट इन देयर शूज, किस वजह से लिसनिंग इस वजह की हुई है। उसके बाद काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर जो है वो सिंपैथी भी होनी चाहिए और एम्पैथी भी होनी चाहिए। इसको हम आगे लेकर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंट होने के राह में सबसे बड़ी 3-4 चीजें हैं कि हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। उसके बाद आजकल जैसे सोशल मीडिया पे हमने देखा हुआ है कि लोग अपने आप को इंटेलिजेंट या अपने आप को स्मार्ट शो करने के लिए हर चीज से डिसएग्री करते हैं, और अक्सर ये कहते होते हैं आई डोंट बाई योर आर्गूमेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई एम। तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। फर्स्ट स्टेप इज कि आप डिसएग्रीमेंट पे तो एग्री हो जाए ना, कि यस वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन हम इसको लेकर चलते हैं। तो हम एग्री तो हैं कि हम डिसएग्री हैं, लेकिन लेट्स सी कि किन चीजों पे हम एग्रीमेंट ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिलेशनशिप इज वेरी क्रिटिकल। आप ये देखें, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेनी अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर रिलेशनशिप। मैंने अपनी इस 20+ ईयर्स की जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें तकरीबन 10th कंपनी है जहां मैंने स्विच किया, एंड देयर आर पीपल जो मेरे साथ तीसरी या चौथी कंपनी में दोबारा वापस आए हैं। और अगर रिलेशनशिप हमारा अच्छा ना होता तो हम उस तरह से शायद काम ना कर सकते। इसी तरह लाइफ में जैसे लोग आजकल कहते होते हैं कि जो हमारी ये ग्लोबल अब विलेज बन चुका है, दिस वर्ल्ड इज टू स्मॉल, तो यू कम अक्रॉस अगेन एंड अगेन विद द सेम पर्सनैलिटी विद द सेम पीपल जिनके साथ आपने करना है कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ जॉब या रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को आपने इंपॉर्टेंट रखना है, बल्कि द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज अबाउट द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट ब्लेम। ये भी देखा गया है कि वर्क प्लेस में ज्यादातर इन केस ऑफ एरर्स, इन केस ऑफ सम लॉस, लोग ये कहते हैं कि जी हर बंदा अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि नहीं, या ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट द ओनरशिप। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको फुली ऑन करें, कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उसको फुली ऑन करें, और ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंट होने की निशानी है।
और जो लास्ट पॉइंट है मैंने अक्सर बता दिया कि एडल्ट शो मोर इमोशनल स्टेबिलिटी, उसमें बावजूद स्मिथ के जूं जूं एक्सपीरियंस पुख्तगी उम्र की होती जाती है, इमोशनली लोग इंटेलिजेंट होते जाते हैं। और मैंने ये कोटेशन या एक फिगर सी बनाई है, या आपने सुना भी होगा, कॉमन है कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो ये किसी ने ये कहा है कि भाई मैंने अपने आप को चेंज कर लिया तो वर्ल्ड खुद ही चेंज हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये डैनियल गोलमैन है जिसकी मैंने तस्वीर बनाई हुई है, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आपकी हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो आप स्ट्रेस को बेहतर मैनेज कर सकेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन या तसाहिली या काहली को आप रिड्यूस कर सकेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप फोकस होंगे, डिटरमिन होंगे अपने गोल के ऊपर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर लेंगे और आपके जो रिलेशनशिप है इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे। You also alleviate anxiety and avoid depression and mood swing। अच्छा, एक तो फिजिकल आपके जो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि गुस्से में आप देखेंगे कांप रहे होते हैं और आप जो है ना इसको एक्सक्यूज मी गुस्से में कांप रहे होते हैं। और एक जो जो चीज है वो ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की आप स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि आप जो है मेंटली जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो आपका जो हायर इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ बेनिफिट्स कि आप जो है एंजाइटी और तमाम किस्म के मूड स्विंग्स को दूर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते तो देयर इज नेगेटिविटी ऑल अराउंड, तो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि इसको कैसे हैंडल करना है। एक तो सबसे पहली बात है कि आपको प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। कि जैसे स्टीवन कवी ने भी कहा है कि थिंक द एंड इन माइंड, कि इसके बाद जो मैं स्टेप करने लगा हूँ एंड पे क्या चीज ऐसी आएगी कि जिसमें मुझे पता चलेगा कि अच्छा अल्टीमेट गोल ये है। तो आपने रिएक्टिव नहीं होना कि कोई भी सिचुएशन है जब वो हमारे ऊपर आ जाती है तो फिर हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमने प्लान करके चीजों को चलना है, पर्सनल किसी चीज को नहीं लेना। अगर वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस एनवायरनमेंट, तो इसमें होता यही है कि हम बहुत ज्यादातर लोग जो है चीजों को पर्सनली ले लेते हैं कि ये मुझे फीडबैक मिला है तो इसका गरज था मेरे साथ या इस तरह से था। आप किसी भी चीज को प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस चीज में जरूर एक पॉजिटिव पहलू नजर आ जाएगा। अच्छा, और कोशिश करें कि जो सिचुएशन है या जो लोग हैं टॉक्सिक पीपल, उनके साथ अपने आप को डिटैच करें, उनके साथ ना रहें। ये नेक्स्ट एक आ भी रहा है कि गोसिप, के ये आप गूगल कर लें, इवन वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ लें, पॉलिटिकल जो एक यूं कह लें कि इन्वायरमेंट है वो हर जगह पे होता है, चाहे वो घर हैं, चाहे वो ऑफिस हैं, या चाहे वैसे तो वो है ही है कि गवर्नमेंट या दूसरी चीजें। तो जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो गॉसिप करता है। अब एक चीज नहीं भी है, कोई आपके ऑफिस का कलीग आके कहता है जी मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि इस तरह की बात है, तो आप कह सकते हैं यस आई हैव बैड डेज दीज डेज, आई हैव बैड डेज नो, लेकिन मैं जो है ना इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, इस चीज को यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा कि आपने एक चीज ये जरूर रखनी है कि ये ना हो कि आप बैकफुट पे चले जाएं। कीप योर पावर, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रखें और अपने आप को आप जो है डिटरमिन भी रखें। ज्यादातर होता ये है कि लोग अपने आप को वीकर एंड पे ले जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ बुलिंग, और वहीं से जो है वो उनकी जैसे कहते हैं कि डिटरेशन शुरू हो जाती है। एंगर को एंगर के साथ रिटर्न नहीं करना, बल्कि आपने एंगर को विजडम के साथ और एंगर को लॉजिक के साथ रिटर्न करना, ठीक है। ज्यादातर कोशिश करें कि जिस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उस पर्सन के साथ डायरेक्टली बात करें, यस आई हैव हर्ड दिस, या मुझे इस तरह की चीज जो है फील हो रही है तो आप मुझे बताएं ताकि हम इस चीज को क्लैरिफाई करें। और लास्ट मैंने चीज की है कि टेक योर बैटल्स केयरफुली। हर छोटी बड़ी चीज के अंदर उसको आपने अपनी बैटल फील्ड नहीं बना लेना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जहाँ पे वो ये होता है कि कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पे अगर वो ऑफिस जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारा इस चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है, और वो आके उसकी चीज में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे। इसी तरह से ये है कि किसी और की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें वो जो है एक ईमेल इस तरह की कर दी, या आप जाके पर्सनल अपना जैसे कहते हैं इनपुट दे दिया। तो ये जो चीज है ना, अपनी बैटल्स को अपने साथ रखें और उनको भी केयरफुली पिक करें। अच्छा, इसके बाद आ गया कि आप इसको रेज कैसे कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। एक तो सबसे पहली चीज है, ये आपने सुना भी होगा, ये अगेन ये भी एक बज़वर्ड बन गया, असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। असर्टिव स्टाइल का मतलब ब्लंट नहीं है, बदतमीजी नहीं है। जैसा कि आजकल हम सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करते हैं, मैंने सेकंड टाइम ये कहा कि लोग बहुत ज्यादा एब्यूसिव भी हो जाते हैं
और बाद लोग क्रश कर देते हैं इमोशंस, या बहुत ज्यादा यूं कह लें कि ओवर जो है स्मार्ट या ओवर एक्ट करने शुरू हो जाते हैं। असर्टिव स्टाइल का मतलब है जो आप महसूस कर रहे हैं एक मैनरफुल अंदाज में उस चीज को कर दें। अच्छा, ये आपका काम आता है इन पर्सनल लाइफ। मिसाल के तौर पे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है उसको भी एक्सप्रेस करें, नहीं पसंद आ रही उसको भी मैनरफुल अंदाज में एक्सप्रेस करें। इसी तरह ऑफिस एनवायरनमेंट में मैंने बहुत सारे ऐसे कलीग्स को देखा, बहुत सारे ऐसे एक्स एलुमनाई को देखा कि जहाँ पर उन्होंने जो है किसी भी चीज को बजाय पूछने के एज्यूम किया, और वो जो असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ना होने की वजह से उसी चीज के हिसाब से उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया और कंफ्यूजन भी आ गई। तो आप जो है कोई भी चीज है उसको डायरेक्टली जो मेन स्टेक होल्डर है उसके साथ बात करके करें। सेकंड स्टेप आ जाता है रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी सिचुएशन है उसको रिएक्ट ना करें। अगर आपको आकर किसी ने कोई बात गुस्से में कह दिया, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, तो आप उसको, एक तो तरीका ये है कि आप फौरन चीखो पुकार करके उसको रिस्पॉन्ड रिएक्ट कर दें, और एक स्टाइल ये है कि आप जो है उसको रिस्पॉन्ड करें इस अंदाज में कि क्या वजह है, क्यों ये मुझे इस तरह से बात कर रहा है। इसमें एक छोटा सा पिछले दोनों वाकया आ रहा था, स्टोरी कह लें, नेट पे देखा, व्हाट्सएप पे था कि ये सुंदर पिचाई जो है जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, वो कहते हैं मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक खातून थी जो बहुत अच्छी उसमें बैठे हुई थी, अच्छी फैमिली से भी ताल्लुक रख रही थी और वैसे भी मैनरफुल लग रही थी। तो कहीं से काकरोच जो है लाल बेग वो उड़ता हुआ आया और उनके कपड़ों में बैठ गया। तो उन्होंने देखा तो फौरन उन्होंने रिएक्ट किया, चीखो पुकार की, और जो वहां पे चाय थी या बाकी चीजें थी वो सब उलट गई, मेज उलट गई। उसके बाद वही काकरोच उड़ा और किसी और कहना चाहिए कि बंदे पे बैठा उसने भी इसी तरह का रिएक्ट किया। तो कहते हैं कि वो थोड़ी देर में रेस्टोरेंट जो है वो बैटलफील्ड का मंजर पेश कर रहा था। अच्छा, काकरोच उधर से उड़ता हुआ वेटर जो था या जो सर्विस कर रहा था उसके कंधे पे बैठा। उसने क्या किया, अपनी जेब में जो रुमाल था या टिश्यू था उसको उसके ऊपर रखा, उसको होल्ड किया और रेस्टोरेंट के बाहर जाके छोड़ दिया। तो सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैंने वहां से एक लेसन लिया कि इट इज अबाउट द रिस्पॉन्स, इट्स नॉट अबाउट द रिएक्शन, कि उसने रिस्पॉन्ड किस तरह किया। तो आप इसी छोटी सी एग्जांपल को, दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड 80-20 रूल, कि हमारे साथ जो 20% होता है उसको हम 80% के जरिए रिस्पॉन्ड कर देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। कि हमारे साथ लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, फेलियर्स भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, हम किसी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर ग्रैब भी हो जाते हैं। तो हमने अगर उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दिया देन वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड इफ वी रिएक्ट देन वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस। थर्ड थिंग इज एक्टिव लिसनिंग स्किल। ये अगेन जो माइंडफुलनेस है ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि आजकल सॉरी टू से जो यंगर जनरेशन है ड्यू टू वेरी मच इन्वॉल्वमेंट इन गैजेट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, उनका फोकस भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है और वो जो है एक्टिवली लिसन भी नहीं करते। तो आप लिसन एक्टिवली करेंगे तो आपकी इमोशनली इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड। ये जो मोटिवेशन है इन HR terminology there are two things, one is called extrinsic, one is called intrinsic. Extrinsic ये है कि आपको रिवार्ड, बोनसेस, प्रमोशंस, सैलरी रेज ये मिलती है तो आप मोटिवेट रहते हैं। इंट्रिंसिक ये है कि आपके अंदर से एक चीज आपको कर रही है कि हाँ मेरी लर्निंग कर्व इंप्रूव हो गई, मैंने आज सपोज इस ट्रेनिंग से या किसी और चीज से ये कुछ सीख लिया। तो आपने जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। देयर आर फ्यू examples or there are few instances where you can get the motivation from outside world, बहुत कम होगा, ज्यादातर आपको खुद ही मोटिवेट होना है। होता यह है कि हमारी कॉमन डे लाइफ में मैंने ये देखा है कि हम ऑफिस में जैसे आते हैं तो जैसे ही हम एंटर हो रहे हैं एक कुलीग आके कहता है कि जैसे आप कोविड के हिसाब से हम देख लें कि आजकल यार ले ऑफ्स हो रहे हैं, पे कट्स भी हो रही हैं और जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा जो है ना वो अब्जर्व हो गई है, तो क्या करें। अब वो क्या हुआ, आपकी मोटिवेशन जो थी वो भी चली गई। और एक चीज ये है कि आपने अपने आप को खुद मोटिवेट किया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्किलफुल, आई हैव समथिंग विद मी, और मैं इतने अरसे से चीजों को लेकर चल रहा हूँ तो इससे कुछ भी नहीं होता। तो अपने आप को अपने मोटिवेट रखना है तो यू रिमेन इमोशनली इंटेलिजेंट। प्रैक्टिस वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, ये अब पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपने प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कोई भी चीज बगैर प्रैक्टिस के नहीं होती। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप ये देखें कि बाज़ औक़ात आपको आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक चीजें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस को भी प्रैक्टिस करें। अपने आप को आप ये देखें कि हाँ मैं जो है ना अपने बारे में कितना मैं अवेयर हूँ, कि अब मेरा मूड कैसे स्विंग हो रहा है,
मैं क्या गोल सेट करता हूँ तो मैं उसे अचीव करता हूँ कि नहीं, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ कि नहीं करता। और एक अभी पहले भी मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि जो क्रिटिक है, अपना जो आपके ऊपर तनकीद होती है, उसको आपने अच्छे अंदाज में लेना है। अगर कोई आपको आके कह रहा है, एक तो चीज ये होगी जो आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड है कि जी आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, अगेन इसमें भी खैर पॉजिटिविटी का पहलू आ रहा है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है या कोई और भी चीज है। आप जो भी आपको एक फीडबैक दे रहे हैं, आप उसके साथ बैठ जाएं और उसे कहें कि लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। अगर वो फेक होगा, अगर वो सूडो होगा, तो वो भाग जाएगा उस सिचुएशन से। और अगर आपका खैरख्वाह होगा, आपका सिंसियर होगा, तो वो बैठकर बताएगा कि यार देखें, आपने जो एक मेंशन मौका था उस पर यह बात की थी, आपकी बात करने का अंदाज ठीक नहीं था, बात आपकी ठीक थी, आर्गूमेंट आपका ठीक था, लेकिन जो टोन थी, जो स्टाइल था, वो इस तरह का था कि उस मीटिंग में लोग झगड़ा कर सकते थे। तो ये जो है ना, आपका जो फीडबैक है और ये आपकी क्रिटिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, एम्पथाइज विद अदर्स, ये बहुत जरूरी है। ये इसका कंपोनेंट भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब एम्पैथी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक सिंपैथी है कि आप किसी को थोड़े से पैसे दे दें या किसी के साथ दो बोल हमदर्दी के बोलें। फर्ज करो देयर इज इंस्टेंस के जहाँ पे आपके एक दोस्त का आपको टेलीफोन आया और उसने कहा कि जी मैं जॉबलेस हो गया हूँ, मुझे फायर कर दिया गया है, या किसी भी वजह से मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में था एंड आई एम हैविंग नो जॉब दीज डेज। एक तरीका यह है कि आप उसे कहें हाँ यार आजकल तो हो यही रहा है, ये दिस इज कॉल्ड सिंपैथी, और दो बोल बोलते हैं। एम्पैथी ये आप उसको कहें फोन बंद कर, थोड़ा सा टाइम निकाल, चल चलते हैं कहीं, आप रेस्टोरेंट में किसी अच्छी जगह पे बाहर चले गए और उसको कहा कि ना सिर्फ उसका जो है हौसला बढ़ाया, बल्कि आपने उसको कहा कि यार मैं आपके लिए भरपूर कोशिश करूंगा कि आप किसी जगह पर दोबारा जो है वो इंगेज हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। ये जो है, ये जैसे कहना चाहिए कि बेस्ट या टॉप जो है वो स्लॉट है जहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले होती है। मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। हमने ऑलरेडी अपने ऑफिस में, जो हमारी आपको नज़र भी आ रहा है, टैलेंटेड अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी इसको किया है, और ये कोड मूवमेंट के उसमें भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एंड पे मैंने लिखा है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड रीडर, तो आपको सबसे पहले गुड रीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत कुछ, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। तो आप हमारे एक दोस्त बहुत अच्छी बात करते होते थे कि ये छोटे छोटे कोटेशन या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप व्हाट्सएप पे भी देख लेते हैं, फेसबुक भी देख लेते हैं, इससे आप कुछ नहीं लर्न कर सकते। इसके लिए आपको थारो रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यू गो इनटू द डेप्थ। तो उसमें यह है कि ब्रायन ट्रेसी है, टोनी रॉबिन्स है, स्टीवन कवी है, ये जो मुख्तलिफ आपने देखे होंगे, ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। इनकी बुक्स को पढ़ें, और उनमें अगर आप देखें तो 3-4 चीज़ों को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि लर्निंग करें, दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है कि टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, और ग्रेट बनने के लिए आपने पॉजिटिविटी अपनानी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मुख्तलिफ है, इसी तरह हार्वर्ड बिजनेस के जो मुख्तलिफ रिव्यूज हैं वो भी अवेलेबल हैं। वो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको दोबारा जिसे कहते हैं कि चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने इस चीज़ को रिसर्च किया है। क्योंकि देखें, कोई भी थ्योरी होती है या कोई भी एक किसी किस्म का जो एक लाइफ चेंजिंग जो कोट बनता है, वो तब बनता है जब कि एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये जितनी मिथ्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, इसको लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया गया, तो पता ये चला कि अगर आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आप फिर बहुत अच्छे तरीके से जो है सक्सेसफुल परफॉर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये कहा जाता है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मोस्टली इंटरव्यूज में ऐसे ही होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन अगर अच्छा पड़ जाए तो वो एक पूरा अपना एक परसेप्शन बना लेता है उस शख्स के बारे में। सो इज इट फाइन और नॉट? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। ये मैंने जो एक स्लाइड भी बनाई थी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है परसीविंग इमोशंस। तो होता यही है कि आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन है या फर्स्ट अपीयरेंस है, इट विल प्ले अ मेजर रोल इन एनी सिचुएशन। चाहे वो एक रिश्ते के लिए भी जाना होता है तो सबसे पहले तो अपीयरेंस को देख रहे हैं, उसके बाद लोग आगे जाते हैं। तो जो इंटरव्यू है या बिजनेस मीटिंग है, उसको भी आप कह लें, तो वहां पर भी ये है कि जो मैयर करने की चीज है वो है आपका जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। उसमें आप ये देखें कि ये एक मूवी भी मुझे याद आ रही है,
इंटर्नशिप के नाम से है। तो उसमें भी आप ये देखें कि वो यही कहता है कि यार आप मतलब उसने इंटरव्यू में पहुंचना था तो कुछ वो सिचुएशन में फंस गया और उसकी शर्ट भी फटी हुई है और डस्टी हुआ है और सारा कुछ। तो उसने कहा कि यार आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसमें अगर आप कोई भी सिचुएशन है तो उसमें देखें, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर यह है कि यस, आपका जो इम्प्रेशन है ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो उसके बाद आएगा कि आप सबसे पहले तो ये है कि अगर आप आ रहे हैं और आपके अगर चेहरे पे सरकास्टिक एक माहौल है, हकारत अंगेज कंटेम्प्ट का है, कि आप कहते हैं कि यार मैं ऑफिस में आया हूँ तो सीढ़ियाँ इतनी गंदी थी, मुझे किसी ने पानी का भी नहीं पूछा, तो आप मुझे बताएं जो इंटरव्यू पैनल है वो वहीं से जो है असरटेन कर लेगा या जज कर लेगा कि इसका जो है वो बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि ही और शी इज नॉट इन ए गुड मूड। तो ये जो है जो नॉन वर्बल साइन है, सिग्नल, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके सर, मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें ये कहा जा रहा था कि हम लोगों को उनके मूड्स को, हम इमोशंस को ना कंट्रोल कर रहे हैं विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के मूड चेंज करते हैं। हमारे पास एक ऐसा टूल आ चुका है कि हम जिसे चाहे नाराज कर सकते हैं, जिसे चाहे हम खुश कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का क्या रोल है हमारे इमोशंस में? समथिंग लाइक के कोई मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो कुछ लाइक्स आते हैं तो मुझे खुशी होती है, इसी तरह कोई डिसलाइक करता है तो मुझे ऑब्वियसली ठीक फील नहीं होता अच्छा है। सही, ठीक कह रहे हैं। तो ये सो तो आपने खुद ही बता दिया। अच्छा सॉरी, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन? या प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हमें सोशल मीडिया को किस हद तक इमोशंस पे अपना करना चाहिए, कि हम इसके से अवॉइड कैसे करें और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए इसमें। जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली तो बात यह है कि आप जो है ना, मीडिया है चाहे सोशल मीडिया, क्योंकि इसमें प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, टेली मीडिया भी आ जाता है। मैंने तो अब टेलीविजन देखना छोड़ ही दिया है, क्योंकि ज्यादातर हम ऑफिस के बाद आते थे तो टॉक शोज होते थे। तो जो सोशल मीडिया है, बीइंग ह्यूमन सोर्स, मुझे वो करना पड़ता है यूज, क्योंकि एडवर्टाइज भी करना पड़ता है और भी रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं। तो उसको भी आप नीड के साथ करें। ये तो देखें, आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि जैसे अब बैशिंग हो रही होती है, सपोज जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो अभी की है या पिछली गवर्नमेंट है, अगर बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली वो चीजों को अभी नहीं वो कर पा रहे, ग्रिप अपनी चीजें नहीं कर रहे, तो उसमें अगर फर्ज करें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं या कोई और ट्रिगर होता है, कोई भी चीज होती है, या जैसे अभी एक रिसेंट कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पर आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को चाहें तो हम लोगों को फ्लेयर अप कर सकते हैं, उनके गुस्से को बढ़ा सकते हैं, और ये भी चाहें तो हम सूद कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये सोशल मीडिया तो बिल्कुल, ये जो 5th जनरेशन वारफेयर है वो मीडिया ही की वारफेयर है। तो ये तो एक कह लें कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर, अब वो टूल्स यही हैं, टूल तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि कोई ना कोई टेक्निक होगी ना। वो टेक्निक यही है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हायर करते हैं और उसको लेके एक खास टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊंगा, ये बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ये चीज़ है कि आप जिस तरह के लोगों में रहते हैं उस तरह के हो जाते हैं। अगर आप हैप्पी मूड वाले लोगों के साथ रहते हैं, आप देखें आप हैप्पी रहेंगे। अगर आप इस तरह के लोग होंगे जो डिसग्रंटल्ड होंगे, जो आकर कह रहे होंगे नहीं यार मेरी तो जॉब भी अच्छी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं मिला, मैं प्रमोट भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान भी ऐसा है, गवर्नमेंट भी ऐसी है, ये वो, तो आप देखें आपके अंदर भी वही जज्बात आ जाएंगे। तो या इसमें ऐसा। यू हैव टू मेक प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि जूं जूं आप ग्रो अप होते जा रहे हैं, आपने ये चीज सोचनी है कि किस बंदे के साथ मैंने कितना वक्त पास करना है, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। और इफ यू आर, जैसे आपने माशाल्लाह, यू सीम टू बी अ वेरी वाइज पर्सन और सेंसिबल पर्सन, कि आपने इस चीज को देख लिया है कि यार मैं जो है ना सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है मेरे ऊपर, तो इसी तरह से जो आम लोग हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। इस स्लाइड में एक चीज जो, क्योंकि दो प्रेजेंटेशन को मैंने मिक्स किया था, 2 days की थी, वो एक चीज रह गई कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इमोशनल एंड बीइंग सेंसिबल। एक चीज ये होती है कि आप जो है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि एक स्लाइड या एक तस्वीर चल रही थी कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये इन्वेंशन हो गई, वो इन्वेंशन हो गई, पाकिस्तान में क्या है, जलसे जुलूस चल रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, सिर्फ लोग बैठे वो कर रहे हैं, वो क्या है, हमें इमोशनल बना दिया, सेंसिबल और वाइज नहीं बनाया। तो प्रोटेस्ट करना है, या मॉडर्न वर्ल्ड में भी प्रोटेस्ट होता है, उसके भी तरीके हैं, लेकिन ये है कि अपनी चीजों को ही खराब कर लेना, अपने आप को ही तबाह बर्बाद कर लेना। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ वी जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। पहली तो बात है कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ओपन इन अवर कम्युनिकेशन।
ठीक है। इसमें जो बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, मेरे अपने घर में भी पड़ी हुई हैं, ये 1000 क्वेश्चन एंड आंसर जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, या जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका। आप अगर आप देखें तो ये क्रिएटिविटी भी है, और ये आपके अंदर एक कहना चाहिए आपका अपना एक पर्सनैलिटी का फ्लेवर है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को खुद आइडेंटिफाई करें और अपनी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद फिर आप उस चीज को रखें। जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपने डिप्लोमेटिक भी होना है। मिसाल के तौर पे आप अगर ये चीज लिख देंगे कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो वहां पे तो जो भी इंटरव्यूअर है वो कहेगा ये खुद ही बता रहे हैं, तो आगे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं नमाज पढ़ते हुए सुस्ती कर देता हूँ, बाद औक़ात काम को मैं इतना परफेक्शनिस्ट हूँ कि मैं जब डिलीवर कर रहा हूँ असाइनमेंट्स को, तो मैं उसके फॉन्ट्स को, उसके कलरिंग को, चीज़ों को करते करते मैं डिले कर देता हूँ। तो वो आपकी वीकनेस भी होगी, और अगर आप देखें तो आपने तरीके से अपनी एक स्ट्रेंथ भी बता दी कि मैं जो है ना करता ज़रूर हूँ, थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। इसी तरह स्ट्रेंथ का जो सेक्शन है उसमें आप बूस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी अपनी आप जो है ना वो शेखी भी मार सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं खुद भी खैर अवॉइड करता हूँ इस चीज को करने की, कि आप बहुत सारी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो स्टार्ट इससे करते हैं कि मैं जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और ये ठीक है वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब आजकल जो है ना यू एटीट्यूड का दौर आ गया है। लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं, और थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, दूसरे के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो आप जो स्ट्रेंथ है वो इस अंदाज में स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे आप स्ट्रेंथ ये दें कि आई हैव अ वेरी फर्म लर्निंग कर्व, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये रोल है, यानी ये आप कह लें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सबसे पहले एक इंटरव्यू में ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो रोल है ये मुझे जो है इस कंपनी के अंदर किस किस तरह डिस्टिंग्विश करेगा विद रेस्ट ऑफ द रोल से। ये आपकी देखें स्ट्रेंथ भी आ गई, और एक तरीका भी आ गया कि आपने उस चीज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो है और बहुत सारी आप स्ट्रेंथ हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है ना मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं टाइम पे आता हूँ और टाइम पे जाता हूँ, लेकिन आपने अल्टीमेटली मैसेज दे दिया कि मैं जो है वो ओवर टाइम नहीं करूंगा या लॉन्ग आवर्स नहीं बैठूंगा। ठीक है, सॉरी कुछ मेरा ख्याल आंसर हो गया। आतिर, मिस्टर आतिर हैं, उनका है ऑसम प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। आई पर्सनली फील मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि शेकी हुआ हूँ, क्योंकि जो होता है एक मैन टू मैन सामने देना प्रेजेंटेशन और ये ऑनलाइन देना, इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जी थैंक यू वेरी मच। वुड यू एक्सप्लेन ए बिट मोर अबाउट द 80-20 रूल? 80-20 रूल इस तरह से है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने 20% ये है कि एक होता ये है कि आपका सुपरवाइजर या बॉस आके एक बात कह देता है सुबह सुबह, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि कल भी लेट थे और आज भी लेट हो, कभी तुम सही भी हो सकते हो कि नहीं। अब एक चीज ये है कि आप सारा दिन उस चीज को, यानी 80% आपका दिन रियून हो गया अगर आप सारा दिन उसको सोचते रहे, उड़ते रहे, और उस चीज के ऊपर जो है वो मरमरिंग करते रहे। और एक चीज ये है कि आप उसको ह्यूमरस वे में कहें कि यार यही चीज तो मेरी अम्मी अबू भी कहते हैं, यार मैं कब ठीक हूँगा, चलो यार मैं किसी से बात करता हूँ कि मैंने अपनी जो है ना मैं किस तरह से जो है ना अपने टाइम को मैं मैनेज कर सकता हूँ। और एक उससे अच्छा स्टेज ये है कि आप उसके पास ही चले जाएं और उन्हें जाके कहेंगे सर खफा ना हो, मैं तो शुरू से इसी तरह से हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वुड यू हेल्प मी टू रेगुलेट माई हैबिट्स। ठीक है, ये भी एक चीज हो सकती है। दिस इज 80-20 कि कोई भी एक चीज देखें, अभी जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है या बाकी आप मीडिया में देखते हैं तो होती कोई भी बात नहीं। ये जो ऑनर किलिंग हो रही है आजकल गैरत की, वो क्या है कि किसी ने आके कोई चीज बताई कि जी आपकी वाइफ को मैंने फलां के साथ हंसते हुए देखा था, दिस इज ओनली 20%। एंड आपने ना ये देखा कि क्या पता वो जो जिसके साथ हंसते हुए देखा है वो कोई उसका भाई था या और उसका कोई एक्स टीचर था, एलुमनाई थे, कुछ थे, लेकिन वो 80% जो है वो क्या है वो परसीव आपने कर लिया। ठीक है,